यहाँ पे मालवीय जी बता रहे थे बीदर गुलबर्गा यादगिर नहीं. To correct him, we have got representatives from across Karnataka. I'm very grateful to everybody whoever has come from all the way from, I think we have from Chamarajanagar to Udupi, from Mangalore, across Karnataka. We welcome everybody, and after that the preface and the introduction of this event, I request the General Secretary of Save the Constitution Committee in a very brief, I think Rishma has already said we have to minimize our time in the trivial things. We'll start, I request Anil Kumar ji to do the preface and the introduction of the program. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. विशेषವಾಗಿ एस.वाई. कुरैशी ಅವರಿಗೆ हम पूरे कर्नाटक तरफ से आपको हर एक बार तहे दिल से आपका इकबाल करते हैं. तो साथियों, हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हैं आज जो पूरे देश भर में देश आजाद होकर 70 साल बाद जो हमारा आईन है, हमारा दस्तूर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब उतना खतरा नहीं था, ये 7-8 सालों में इस हमारे संविधान को बहुत बड़ा खतरा इन फिस्का फॉरेस्ट कम्युनल फोर्सेस ने जो आज संविधान के बारे में जो गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो संविधान को झूठा देने की और संविधान के बारे में ना जाने ऐसे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप दुनिया में हर एक तरफ से चंद लोगों ने एक झूठ का काम चालू किया है. उसी सिलसिले में अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर पर दिन दहाड़े संविधान की प्रतियां जलाई, आप सबको मालूम है. तो उसी सिलसिले में पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं आवाज उठी है तो बसवेश्वर के कर्मभूमि बीदर से यह पहला आवाज उठा पूरा देश भर में, जो संविधान को बचाए, डेमोक्रेसी को बचाए. तो हमने, हमारे साथियों ने, क्योंकि संविधान किसी, हमारे भाई साहब बसवराज मार्गे ने बोला है कि संविधान किसी SC/ST का नहीं है. संविधान पूरा हमारे मेरे भारत का 135 करोड़ लोगों का संविधान है. तो संविधान का जवाबदारी और संविधान को रक्षा देने का काम हम सभी का है. ये प्रयत्न के आप सब लोग हाथ जोड़ना है, क्योंकि ये देश भर में किसी नेता के नाम पर, किसी समाज के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर काम होता है. आज वक्त आया साथियों, आज संविधान बचाने के लिए हम सब संविधान के साथ जुड़ना है और फिरका फरोश लोगों को यहाँ से बाहर करना है. तो आप लोग आशा और विश्वास रखते हैं आप हमारे साथ जुड़ेंगे. सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी की ओर हम सबको चलना है. तो इसी आशा विश्वास के साथ हमको जहां जहां भी दिक्कतें आती हैं तो आप लोग, हम कंधे से कंधा, हाथ से हाथ मिलाकर हमको साथ चलना है. जैसे कि हमारे अब्दुल मोहम्मद से जो हमारे सेव कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, हमने यहाँ पर किसी एक धर्म के या एक आदमी को नहीं, यहाँ पर SC है, OBC है, ST है, माइनॉरिटी है, प्रोग्रेसिव लिंगायत है, हर जात का, हर धर्म का लोग हमारे साथ जुड़ना है. तभी तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಪುರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡೋಣ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದ ಕಮ್ಮಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವಾಗೆ ಬಂದವರು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. We'll come to the main program where we will launch this landmark book. I think this will shut many mouths, because the propaganda which it is going to burst is not a day or two old propaganda. I think it was run for almost not a year or more. I think from decades this has been propagated. The wrong fallacy which has been propagated, this myth is being busted with this landmark book. We are here to launch the book of S.Y. Qureshi sir, the population myth. I request Rahman Khan sir and all the dignitaries. I request Mr. Shahid Siddiqui sir to please come on the stage. Ex-MP Shahid Siddiqui sir, please come on the stage.
I request Mrs. Khurshid Ira Sharma Qureshi madam to please come over the stage, madam. I request the volunteers to bring the books here. I request Rahman Khan sir, and all the dignitaries to please launch the book of Aswar Qureshi sir. As always, he has moved all of us. I wanted Mr. Aswar Qureshi sir, because not everybody has read the book. Let him lay the foundation for this particular ceremony and let everybody know what lies in this particular book. What are the myths which he has burst already in this book. I request Mr. Aswar Qureshi sir to please come to the podium and let everybody know about what the whole idea which he has propagated in this particular the population myth book. Before that, I request Amrit Chinkor Sahab, who is honorary president of this Save Constitution, to honor the press. I thought I'll wait and listen to you. I looked at the time, it's already 12:17. I'm a kindly thank you. Please excuse me, I'm not able Yeah, it's coming. Let me know. Thank you. Respected Rahman Khan Sahab, the distinguished people on the dais and distinguished audience, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग हिंदी नहीं समझते? 2 लोग। कितने लोग अंग्रेजी नहीं समझते? बराबर के हैं। तो if I speak in हिंदी में बोलूँ और बीच-बीच में अंग्रेजी के 2 शब्द, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरी एक है, वो अंग्रेजी में है। तो इसलिए वो अंग्रेजी में उसको देख लीजिएगा, हिंदी में मुझसे सुन लीजिएगा। ये अच्छा आइडिया था आपका कि अभी किताब किसी ने पढ़ी नहीं है, क्योंकि अभी तो उनके हाथ में ये है, तो इस किताब में है क्या, तो पहले अगर उसको इंट्रोड्यूस कर दें तो लोगों को उस पर बोलने में सहायता मिलेगी। ये पहले तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
कि उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसी बढ़िया गिफ्ट दी, ऐसा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में शायद ही कोई होगा, और उसी के बलबूते पे हम एक मेजर इकोनॉमिक पावर बने, मोस्ट रिस्पेक्टेड बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यानी आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि जब हम दुनिया भर में लेक्चर देने जाते हैं तो कितनी इज्जत से ये देखते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कोई 90 करोड़ तो वोटर है, और न सिर्फ हम लोग जो इलेक्शन करते हैं वो दुनिया का बिगेस्ट इलेक्शन ही नहीं, वो दुनिया का बिगेस्ट मैनेजमेंट इवेंट है। अब 90 करोड़ वोटर तक पहुंचने के लिए हम एक एक घर जाते हैं, वहां से पूछते हैं बताओ भाई 18 साल का कौन हो गया, उसका फॉर्म भरवाते हैं, फोटो लेते हैं और उनको वोटर आईडी कार्ड इशू करते हैं, 10 लाख पोलिंग स्टेशन सेटअप करते हैं ताकि आप वहां के वोट दे सकें, किसी को 2 किलोमीटर से दूर न जाना पड़े। बल्कि हमारा एक तरफ तो हमारे इतने वोटर्स हैं कोई 90 करोड़ के करीब, दूसरी तरफ हमारे एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे सिर्फ एक वोटर है, वो गिर फॉरेस्ट के जंगल में रहता है, प्रीस्ट, वो कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ही तुम्हारे यहाँ के पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे एशियाटिक लायंस रहते हैं, कोई आदमी वहाँ दिन में जा नहीं सकता, लेकिन वो प्रीस्ट वहाँ रहते हैं, उनके लिए हम एक पोलिंग स्टेशन सेटअप करते हैं। उसमें 6 आदमी की टीम एक रात पहले उनके लिए पोलिंग स्टेशन बनाती है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो अगले दिन कितने बजे आके वोट देंगे ये उनकी मर्जी। अब वो जब वोट दे के चले भी जाएं तब भी हम पैकअप नहीं करते, क्योंकि हो सकता है कि जो बाद में आके कहे कि वो तो बोगस वोटर था, असल प्रीस्ट तो मैं हूँ, वोटर तो मैं हूँ, तो डिस्प्यूट अराइज होगा, तो उस डिस्प्यूट को हमने सॉल्व करना होगा। तो उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हम 5 बजे तक उस पोलिंग स्टेशन को खुला रखते हैं। तो लेकिन ये वोटर अभी पिछले साल नवंबर के में जब प्राइम मिनिस्टर जिस दिन अपनी मन की बात में उन्होंने उस पर 2 मिनट बोले, उसी दिन उसकी सुबह उसकी डेथ हो चुकी थी, तो वो चले गए, हमारे एक पोलिंग स्टेशन कम हो गया। इससे पहले भी केरला में इस तरह का पोलिंग स्टेशन, एक डैम बन रहा था, वहां पे लोग थे, जब डैम तैयार हो गया तो सब लोग चले गए, एक वोटर जो था वो कहा मैं यही रहूंगा, हमने उसके लिए वो पोलिंग स्टेशन रखा। उसकी भी जब डेथ हुई तो अखबार की हेडलाइन थी डेथ ऑफ अ पोलिंग बूथ। तो कहाँ एक तरफ हम इतने 90 करोड़ लोगों का ख्याल रखते हैं, कहाँ एक 2 का ख्याल रखते हैं, और ये भी कोई ऐसे नहीं जस्ट फॉर इफेक्ट, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आप में से कुछ लोग नेता लोग तो जरूर जानते हैं कि राजस्थान में 2008 में इलेक्शन हुआ और वहां पे कांग्रेस के उस वक्त के प्रधान मिनिस्टर सीपी जोशी कैंडिडेट थे, और ये समझा जाता था कि अगर वो जीतेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो 1 वोट से हार गए, 1 वोट से। अच्छा, जब वो हार रहे थे, काउंटिंग हो रही थी, तो उन्होंने रिटर्निंग अफसर को फोन किया कि भाई सब मेरे जो पोस्टल बैलेट्स हैं 500 के करीब थे, उसको दोबारा गिनो, शायद उसमें गलती हो, क्योंकि मशीन में तो गलती होगी नहीं, हर बार बटन दबाएंगे मशीन वही जवाब दे देगी। तो आरओ ने कहा कि ठीक है, रिटर्निंग अफसर ने मैं कर देता हूँ वो भी रिजल्ट। तो फिर आया कि साहब वो जो मशीनों से टोटलिंग हम करते हैं वो हाथ से करते हैं मैन्युअली किसी वजह से, तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें गलती हो सकती है, उसको दोबारा टोटल कर दो। आरओ ने कहा जी दोबारा कर देता हूँ, 15-20 मिनट लगे, वही रिजल्ट। फिर उनका तीसरा फोन, थैंक यू आपने मेरी हर बात मानी, इसके लिए आया 1 वोट। लेकिन देखिए 1 वोट से उनकी हिस्ट्री बदल गई, बाद में वो सेंटर के मिनिस्टर बने, लेकिन चीफ मिनिस्टर राजस्थान। इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, वो सुनने में मजाक लगती है। उस दिन उनकी वाइफ ने वोट नहीं दिया था। तो जब मैंने ये सुना कि ऐसे है कि वाइफ ने वोट नहीं दिया, मैंने उनको जोशी जी को फोन किया, मैंने कहा इज इट ट्रू दैट योर वाइफ डिड नॉट वोट? उन्होंने कहा इट इज ट्रू, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज दैट माय वाइफ एंड डॉटर हैड गॉन टू अ टेंपल, कुछ जो जरा दूर था। तो हमारे लिए इसमें 3 लेसन हैं। एवरी वोट काउंट्स। Secondly, you cannot take even your family for granted. And third, on the day of the poll, the most important temple is the polling station. So ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। Now, इस बैकग्राउंड में
आप ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये पॉपुलेशन के टॉपिक कहाँ से लाया। ये टॉपिक भी एक्सीडेंटली मेरे पास आया था। मुझे इसमें कोई पहले बनी था 1995 की बात, 25 साल पहले। UNFPA जो यूएन का फैमिली प्लानिंग के डिपार्टमेंट है, वो मेरे पास आए कि ये मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग बहुत कम होती है, हम चाहते हैं आप हमें एक स्ट्रैटेजी पेपर लिख के दीजिए। तो मैंने कहा भाई न तो मैं इस्लाम का स्कॉलर, ना मैं हेल्थ मिनिस्ट्री या फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में निगरान किया था, मुझे क्यों नहीं आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। वो मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझको 1.5 लाख रुपए 1 महीने के लिए ऑफर किए। 1.5 लाख बहुत होते थे क्योंकि मेरी तनख्वाह उस वक्त 5,000 थी। तो लेकिन मेरे दिल से एक बात निकली, मैंने कहा कि ठीक है आप इतना इंतजार करें, मैं करूंगा, लेकिन इसको फ्री करूंगा, पैसे नहीं लूंगा। तो मुझे कहा हमको तो लोग दबाव डाल के लेते हैं और आप करो फ्री करोगे। मैंने कहा नहीं करूंगा, तो फ्री इंसिस्ट कर रहा हो तो ठीक है मैं लेता हूँ। हमने निगोशिएट किया 1 रुपया, 1 रुपया लूंगा, लेकिन हम साइन करेंगे। 1 रुपया हो या 1 मिलियन या 1 करोड़, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है सरकारी, उसमें उसके लिए पूरे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते। तो आप मुझे लिखें, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, सरकार से परमिशन लूंगा, वो सब हुआ। उसके बाद जो मेरा निकल के आया उसने मेरी आंखें खोल दी। जो मिथ जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो मिथ का शिकार मैं भी था। मैं भी ये समझता था कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे तो ज्यादा पैदा करते हैं, लेकिन क्या वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जिम्मेदार हैं? क्या वही बस बच्चे पैदा करते हैं और लोग नहीं करते? तो ये चीजें जब उसमें सामने निकल के आई तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन की। मुझे हर जगह वहां पे 2,000-5,000 ऑफर करते, मैंने कहा इसका मैं पैसे नहीं लूंगा, ये मेरा नेशनल कंट्रीब्यूशन। आज तो इस किताब की भी रॉयल्टी मैंने ऑलरेडी एक चैरिटी को दे रखी है कि इस सब्जेक्ट से मैंने एक पैसा नहीं करना, और ये मैंने नेशनल इंटीग्रेशन के लिए करना। इसकी मैं अभी रहमान खान साहब को दिखा रहा था, इसकी जो डेडिकेशन किताब में की जाती है वो फर्स्ट पेज पर ही, उसमें मैंने ये लिखा है टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियाज यूनिक आइडेंटिटी। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसकी उनके में जो यूनिटी है वो है। और मैंने इसे अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में लिखा था कि अगर एक शख्स भी मेरी इस बात से कन्विंस हो गए और अपने मिथ को निकाल दे तो मैं दुनिया में कामयाब हो गया। और मुझे तो इतनी हैरानी है कि ये सारे लोग जो बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन्होंने ये किताब को जब देखा और ये तो मेरी बात से कन्विंस हुए तो इससे लगा कि बहुत इसमें जान। रमेश कुमार जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे सेक्युलरिज्म की और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। मैंने बार बार कहा है कि देखिए इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर। 80% है, 83% पहले तो थे, अब वो सेक्युलर है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस पर पार्टीशन के बाद इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, पाकिस्तान बिकेम ए इस्लामिक रिपब्लिक। Nothing could have stopped us from making a Hindu republic. Nothing. But the constitution framers unanimously और उन्होंने सेक्युलर कंट्री चुनी। उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 83% हिंदूज थे। उन सब ने एक आवाज से सेक्युलरिज्म चुना। तो इसलिए अगर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया इज सेक्युलर बिकॉज हिंदूज आर सेक्युलर, तो इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है। ये किताब का मेरा थीम भी ये है। मुझे इस किताब में अभी जो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा कि मुझे हिंदू मुस्लिम कहते में बहुत ऑकवर्डनेस फील होती थी। अब थोड़ी कम हुई क्योंकि इसमें कुछ दिन से बात कर रहे हैं। ये इस किताब का टॉपिक ही ऐसा है कि इसको हम हिंदू मुस्लिम टर्म में बात करनी ही पड़ेगी, because there is no other way we can discuss this issue. Because the allegation is for the last 100 years or more, in any case since independence, that Muslims are producing too many children deliberately to overtake the Hindu population. कि वो इतनी बढ़ाते हैं आबादी कि उनको पॉलिटिकल पावर उनके पास आ जाए और बस जो हिंदुओं को डराते हैं कि बस डर जाओ, जल्दी मुसलमान आने वाले हैं, दोबारा से आ जाएंगे, इतनी आबादी बढ़ा देंगे और तुमको भी चाहिए 8-10 बच्चे पैदा करो। इमेजिन 8-10 बच्चे पैदा करने का कंपटीशन अगर हिंदू मुसलमान से शुरू हो जाए तो देश हमारा कहाँ पहुंचेगा। तो इस किताब पर मैंने ये इस किताब का जो थीम है
अल्टीमेट थीम वही है जिसके लिए यूएन वाला मेरे पास आया था कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे कराई जाए। इसका पूरा आखिरी चैप्टर यही है कि देखिए प्रोपेगेंडा कुछ भी हो दूसरों का, लेकिन आपने फैमिली प्लानिंग जरूर करनी चाहिए क्योंकि फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत अच्छी चीज है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 उसने जो लक्ष्य रखे थे, टारगेट रखे थे, वी आर अबाउट टू अचीव दैट। उसमें उन्होंने कहा था 2010 तक हम रिप्लेसमेंट रेट पहुंच जाएंगे। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब क्या होता है, दो माँ बाप हैं वो चले जाएंगे तो उनकी जगह दो बच्चे हैं वो उनकी जगह आ जाएंगे, तो पॉपुलेशन रिप्लेस हो गई, इजाफा उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। रिप्लेसमेंट रेट, दूसरा लफ्ज जो बार बार आएगा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि लाइफ टाइम में एक औरत के कितने बच्चे होंगे औसतन। तो अगर 2.1 उसके बच्चे होंगे तो रिप्लेसमेंट रेट हो गया। तो 0.1 इसलिए रखा कि कुछ बच्चे शुरू में मर जाते हैं तो उसका मार्जिन रख लिया, अदरवाइज तो 2 होता कि 2 माँ बाप जाएं 2 बच्चे आ जाएं तो रिप्लेस हो गया 2.1। 2.1 अचीव करने का टारगेट था 2010, लेकिन आज 2021 में हम 2022 पे पहुंचे, ये 2.2 पे पहुंचे, जरा सा रह गया। और लेकिन 25 स्टेट 2.1 और उससे नीचे आ चुके हैं। साउथ की सारी स्टेट्स ने बहुत अच्छा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किया। यहाँ पे 2 हेल्थ मिनिस्टर पुराने बैठे हैं, लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि साउथ की 4 स्टेट्स में फैमिली प्लानिंग कहां से कहां पहुंची। उसी वजह से ये पॉलिटिकल इशू आया कि साहब हम फैमिली प्लानिंग करके आबादी कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्लियामेंट आप यूपी और बिहार को बढ़ाए चले जा रहे। तो वो बात तो बिल्कुल ठीक थी, इसलिए 2071 में 1971 में ये फ्रीज कर दिया गया कि जो रेशियो है स्टेट की कि कितने एमपी कितनी कौन सी स्टेट से जाएंगे उसको हम फ्रीज कर देंगे 2026 तक, ताकि ये न हो कि जिन्होंने फैमिली प्लानिंग अच्छी कर दी उनके एमपी कम हो जाए, यूपी बिहार के बढ़ते जाए, तो वो तो नहीं चलेगा। तो मुझे तो फीलिंग ये है कि 2026 भी अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि साउथ को हम पनिश नहीं कर सकते फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस इन फैमिली प्लानिंग। सो आई हैव अ फीलिंग दैट दिस विल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड दैट, बट दैट इज बात की बात। इसमें जो जरा प्लीज मूव करते जाए, इसमें जो हिंदुओं में जो फियर पैदा किया जा रहा है, हेटरेट, जो जिसका बार बार दोनों तीनों स्पीकर ने पहले ये कहा कि हिंदू मुसलमान में हेटरेट पैदा करो, क्योंकि इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी ये बन गई है कि एक ही तरीका पोलराइज करने का कि हिंदुओं को डराओ कि मुसलमान आ रहे हैं और उनमें नफरत पैदा करो। सो विच इज जगह जगह राइट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो राइट्स सरकार उससे डरती नहीं है, राइट से वो तो राइट से खुश होती है, क्योंकि एवरी राइट में पोलराइजेशन हो जाती है, हिंदू मुस्लिम अलग हो जाते हैं, जो उनका लक्ष्य है, क्योंकि उसके बिना इलेक्शन जीतना बड़ा मुश्किल है। 5 मिथ है जिनका मैं इसमें किताब में मोस्टली जिक्र किया। सबसे पहले तो मुस्लिम प्रोड्यूस टू मेनी चिल्ड्रन एंड आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें ये तो ठीक है कि मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग सबसे कम है। लास्ट सेंसस जो 2011 का था उसमें 45% मुसलमानों ने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट कर ली, सबसे कम। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नंबर 2 पे कौन है, वो भी देखिए, वो हिंदूज है, वो 54% है, ज्यादा दूर नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की स्पीच में कहा कि जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं वो पेट्रियोटिक नहीं होते, एंटी वो नॉन पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिज्म से इसको जोड़ा। उसी दिन में से टीवी इंटरव्यू में चैनल में फेड इश्यूज होती, वो उसने स्लाइड दिखाया किताब में कि सिखों की फैमिली प्लानिंग एडॉप्शन इज 80%, हिंदुओं की 54%, सिखों की 80%। तो सबसे ज्यादा पेट्रियोटिक कौन हुए? सिख। और उनको पेट्रियोटिक कहने के बजाय उनको खालिस्तानी कहते थे। तो अगर ये इसे आपने लिंक करना कोई दुख नहीं। तो अगर मुसलमान सबसे कम पेट्रियोटिक हैं क्योंकि सबसे कम फैमिली प्लानिंग है, तो नंबर 2 पे जो सबसे कम है वो भी तो फिर कम पेट्रियोटिक हुए, यानी हिंदू। तो इसलिए ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सिर्फ मुसलमान की वजह से हो रहा है, ये चीज नहीं। दूसरे अगर आप देखें एक्चुअल टर्म में खतरा तो जब होगा ना कि एक आदमी है और उसको मारने वाले 2 हैं या मारने वाले 10 हैं लिंचिंग करने के लिए,
1951 में 1951 में द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन वाज 27 करोड़. दैट गैप हैज इंक्रीज्ड टू 80 करोड़. तो हिंदू की तादाद तो बढ़ रही है मुसलमानों के मुकाबले में, न कि घट रही है. वो तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है. तो 80 करोड़ का गैप हो गया, पहले 27 करोड़ का गैप था. नेक्स्ट, दूसरा मिथ, ये कि मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ इज अपसेटिंग द डेमोग्राफिक बैलेंस. बैलेंस मतलब है कि 100 में से कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, वो बैलेंस है. कुछ हद तक ये डेमोग्राफिक बैलेंस जरूर डिस्टर्ब हुआ. 51 में 84% हिंदू थे जो 79.8 रह गए, 4.2 कम हुए. और ये जो 4.2 कम हुए ये सभी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ज्यादातर मुसलमानों की रेशियो 9.8 से बढ़ के 14.2 हो गई. यानी 60 साल में 2011 तक 4.4% का इजाफा हो गया. 4.4% मुस्लिम 60 साल में सिर्फ 4% बढ़े हैं. न कि 51% बढ़ने के लिए 40% बढ़ने चाहिए. यानी 600 साल लगेंगे मुसलमानों को 51% बढ़ने के लिए. तो और ये भी जब पिछले 60 साल की जो ट्रेंड थी वो ही चलती रहे, उसको डिस्टर्ब ना हो. लेकिन वो तो डिस्टर्ब हो रही है. वो कैसे डिस्टर्ब हो रही है कि सबसे फास्ट एडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज अमंग द मुस्लिम्स. हिंदुओं से ज्यादा तेजी से मुसलमान फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं. तो विद द रिजल्ट, एक और मिथ में आपने सोचा, अगर आप एग्री करेंगे कि जनरल इंप्रेशन जो मुझे भी था, जैसे मैंने कहा कि जैसे अगर हिंदू फैमिली के 2 बच्चे हैं तो मुसलमान के 8 या 10 होंगे. ये इंप्रेशन जनरल है. इस किताब में मैंने दिखाया पिछले 30-40 साल के डेटा के उस पे, एट नो पॉइंट इन टाइम द गैप वाज मोर देन 1 चाइल्ड. हिंदुओं के 2 थे तो मुसलमान के 3, हिंदू के 5 थे तो मुसलमान के 6. गैप सिर्फ 1 का था, नॉट 6 और 8 और 10 का. लेकिन वो इतना गैप जो था 1.1 वो घट के 0.48 रह गया. आधे से कम बच्चे का गैप है तो हिंदू मुस्लिम में. उस बेसिस पे बस मुसलमान ही एक्सप्लोजन कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बेतुकी बात होती है. ये इसमें निकला. अब आप ये देखेंगे कि बाय द वे इस किताब में सारा डेटा भारत सरकार का डेटा है. किसी और डेटा को मैंने यूज नहीं किया. सेंसस है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हर 5 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है. तो उसकी ये सब उसकी फिगर्स है. और उसमें आप देखेंगे कि जो TFR का गैप जो मैंने बताया ना कि कभी भी 1.1 सबसे पहले जो बार है वो 1.1 है, और कैसे घटते घटते वो आधे से कम पे आ गया. तो जिस रफ्तार से मुस्लिम अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये इशू तो बिल्कुल ही जल्दी खत्म ही हो जाएगा. तीसरा मिथ कि मुसलमानों की ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी जानबूझ के ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर ले. ना मैंने तो आज तक रहमान खान साहब ने और किसी और ने सुना किसी मुसलमान मौलाना को, किसी स्कॉलर को, आलिम को ये कहते हुए कि मुसलमानों बच्चे बहुत पैदा करो ताकि पॉलिटिकल पावर तुम्हारे हाथ में आ जाए. कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना. ये जरूर सुना है कद से कि भाई मुसलमानों को फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे मजहब के खिलाफ है. जो वो भी है कि फैक्ट नहीं है जिसपे मैं अलग से आ रहा हूँ. लेकिन ये तो जरूर कोई आपको उलमा मिल जाएंगे. लेकिन किताब पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए आप ऐसा कीजिए, कहीं नहीं सुना. तो फिर मैंने इसका भ्रम तोड़ने के लिए प्रोफेसर दिनेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होते थे, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्कॉलर मैथमेटिशियन. मैंने दिनेश भाई को बोला मेरे दोस्त भी हैं, मैंने कहा कि मैं आपको अपना डेटा भेज रहा हूँ, ये बताओ कितनी जल्दी मेरी पावर आ जाएगी देश में. तो उन्होंने मेरे सारे जो उम्मीद थी उस पर बाल्टी भर पानी भेज दिया. कहने लगे मौलाना भैया भाईजान भूल जाओ, कभी नहीं आ सकती. 1000 years में भी नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती. क्योंकि मैं उनसे मैंने कहा कि एक मैथमेटिकल मॉडल बनाओ. एक मॉडलिंग होती है कि मैथमेटिकली वो कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे ट्रेंड है वो हमको किधर लेके जा रही है, आगे 100 साल बाद, 1000 साल बाद क्या होगा, वो पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हैं. उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी भी वो हो जाए. प्रोफेसर दिनेश सिंह जो मेरे कजिन नहीं है,
और उनके साथ प्रोफेसर अजय कुमार, इन दोनों ने मिलकर ये मॉडल बनाया। ये देखिए इस मॉडल का ग्राफ देखिए, ये हिंदू और मुस्लिम में जो गैप बता रहे ना कम हो रहा है, ये इतना बढ़ रहा है, इस रफ्तार में बढ़ रहा है कि आप देखिए कि मुसलमान यूं जा रहा है, हिंदू यूं जा रहा है, और वो बढ़ता चला जाएगा। ये मैथमेटिकल मॉडल प्रोफेसर दिनेश सिंह एंड प्रोफेसर अजय कुमार। ये इसलिए ये जो मिथ है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके छूट होने का इससे बड़ा कोई क्या सबूत हो सकता है। मिथ नंबर 4, मुसलमान कई बीवियां करते हैं, 4 बीवियां करते हैं ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करें और वो उनका जो पॉलिटिकल एम्बिशन पूरी हो। एक बहुत ही टॉप नेता देश के, उन्होंने 20 साल पहले कहा था, और वो बाद में भी कभी कभी शायद कहा हो, हम 5 हमारे 25, यानी मैं और मेरी 4 बीवियां और हमारे 25 बच्चे, ये उनका ये हम मुसलमानों के लिए स्लोगन उन्होंने दिया था। और हम 4 हमारे 40, आज भी कॉमन है कि हमारी 4 बीवियां और हमारे 40 बच्चे। अब मेरे पास अगर दूसरी बीवी होती तो आप कंटिन्यू कराता, तीसरी चौथी होती तो मैं लेके आता। एक तो दो इसमें जो मिथ है कि एक तो हिंदुस्तान में पॉलीगेमी संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है स्टेटिस्टिकली। क्यों संभव नहीं है कि हिंदुस्तान में औरतें ही नहीं है, माइनॉरिटी है। 1000 मर्दों के ऊपर ये सेंसस की रिपोर्ट 2011 की, 1000 मर्दों के मुकाबले में 940 औरतें हैं, जो पिछले पूरे 100 साल में सबसे ज्यादा है। वरना 920, 927, बल्कि 2020 की फिगर थी कि ये 922 औरतें। 1000 मर्दों के लिए 922 औरतें हैं, तो वो दूसरी बीवी कहां से आएगी? 80 लोगों को तो बैचलर रह गए क्योंकि उनके लिए औरतें नहीं बची। तो इसलिए स्टेटिस्टिकली मैं ये कहता हूँ, सुनने में मजाक लगेगा कि हिंदुस्तान में किसी भी, आप सारे हजरात बैठे हुए हैं, आपकी किसी की भी एक पूरी बीवी नहीं है। 0.9 वाइफ है आप सबकी, और जो यहाँ लेडीज बैठी हुई है वो अपने हस्बैंड की 0.9 वाइफ की। स्टेटिस्टिकली ये सुनने में जोक लगता है, पर वेरी साउंड स्टैटिस्टिकल प्रोपोजिशन कि जो औरतें हैं ही नहीं, तो where will polygamy come from? तो ये दूसरा एक स्टडी भारत सरकार की, उसने ये पाया कि सारी कम्युनिटीज में पॉलीगमी थोड़ी बहुत है, और सबसे कम मुसलमानों में। ये देखिए, ये टेबल है, ये 1975 में स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया कमेटी की रिपोर्ट थी। तो ये 15% ट्राइबल्स हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं, फिर जैन है, फिर हिंदू 5.8, मुस्लिम 5.7, सबसे कम फैक्चुअली। फिर मैंने देखा कि ये तो नहीं कि कोई फ्रीक फिगर है, एक स्टडी ने कर दिया। मैंने 1931, 41 और 51 के 3 सेंसस के डिटेल देखे, गवर्नमेंट फिगर, सब गवर्नमेंट फिगर, 100% गवर्नमेंट फिगर। तो उस सब में यही ट्रेंड पाई गई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि हम मुसलमानों को जब हम पॉलीगमी करते नहीं तो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। हम मान लें कि भाई पॉलीगमी बैन कर लो, बड़ी अच्छी चीज है कि जब हम करते ही नहीं तो बैन होने में क्या हमको कबाहत है, क्या रुकावट है, करना नहीं चाहिए। तो ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि हम इसके लिए क्यों लड़ते मरते हैं, कि इस राइट के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है। फिर इसमें क्या एक और चीज जो मुसलमानों को एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि डज इस्लाम इनकरेज पॉलीगमी? कुरान शरीफ की सिर्फ एक आयत है, सिर्फ एक आयत है वो पूरे कुरान शरीफ में जो पॉलीगमी की बात करती है। वो ये कहते हैं कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो। अब ये सुन के मैं शादी करने निकलूं दूसरी तीसरी, तो ये बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है इसमें वो सुनिए। आगे उसमें ये लिखा है कि तुम 2 या 3 या 4 से शादी कर लो, लेकिन उनके साथ बिल्कुल बराबरी करनी होगी। और लेकिन अल्लाह ही जानता है कि वो बराबरी आसान नहीं है, मुश्किल है, इसलिए एक काफी। उसके बाद लिखा है एक ही बेहतर है, एक ही बेहतर है, एक ही बेहतर है, ये लिखा है। तो कुरान शरीफ की एक ही आयत है
वो ये कह रही है, वो इजाजत दे रही है, परमिशन है, लेकिन वो कंडीशनल परमिशन है। और कंडीशन जो है उस जमाने में तो 50-50 वो बीवियां लोग रखते थे, क्योंकि औरतें उस वक्त ज्यादा थी कि मर्द तो ट्राइबल वॉरफेयर में मर जाते थे, तो औरतों की जितनी तो वो बहुतारी करते थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तुमने एक तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 4 से ज्यादा नहीं, अप टू 4, और वो भी इस कंडीशन से कि एक और चीज मौलाना जो मैं बताऊं जो आपको भी याद नहीं है और किसी मौलाना से और मैंने कहीं नहीं पढ़ा, और मैं चैलेंज से कहता हूं, अब इस आयत का पहला पार्ट सुनिए। इस आयत का फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्स इज, दिस वर्स इज अबाउट द ऑर्फन्स एंड विडोज। Allah is saying, telling people that look, treat the orphans and widows with love and care. Do not treat them badly. Do not misappropriate their property. Do not replace their good thing with your bad thing. अच्छी चीज उनकी ले ली, बुरी डाल दी। बल्कि अच्छा तो ये होगा कि तुम उन orphans and widows में से 2 या 3 या 4 शादी कर लो। तो पहली कंडीशन तो है कि विडोज होनी चाहिए। वो हम भूल जाते हैं, मैं दूसरी करने निकलूं तो पहले तो वर्जिन चाहिए होती है। ये परमिशन तो दी गई है कि उन विडोज में से 2-3 कर लो, ये थोड़ी कि कहीं से भी कर लो। कोई मुझे कोई आलिम इसको क्वेश्चन करके दिखाए, साबित करके दिखाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इसलिए ये, अच्छा, आई एम नॉट इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन जब मैंने एज एन एजुकेटेड मैन इसको गौर से पढ़ा तो ये इंटरप्रिटेशन निकल के आया। तो हमें ये मुसलमानों में ये चीज को प्रीच करना चाहिए, समझाना चाहिए। कौन कौन सी आयतें हैं उन सबका नाम मैंने इसमें ये लिखा हुआ है। फिर इसमें जो मुसलमानों को एड्रेस है, ये एक मिथ कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। ये उन्होंने एक छोटी स्टडी अपने आप की थी हैदराबाद, लखनऊ और अलवर में, कि वाकई मुसलमानों का क्या एटीट्यूड है। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे थे, हमने उनसे पूछा, 70% के लगभग लोगों ने कहा कि यस वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज इस्लाम हमारे फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है। हमने पूछा कि तुमको किसने बताया? उन्होंने कहा जी हमारे लोकल इमाम साहब ने, मौलाना ने। हम मौलाना साहब के पास पहुंच गए कि जी आप क्या कहते हैं? जी हाँ, मजहब खिलाफ है। मैंने कहा देखा आपने, बढ़ा दिखा दो हमको आयत। कोई नहीं। नाउ इस्लाम के एग्जैक्टली क्या कहता है? इस्लाम में कहीं भी फैमिली प्लानिंग की प्रोहिबिशन नहीं है, और जो जो चीज अल्लाह ने प्रोहिबिट करनी थी वो स्पेसिफिकली बता दी है। शराब नहीं पीना हराम है, रेप करना हराम है, जुआ करना हराम है, सूद लेना हराम है। जो जो चीज हराम करनी थी अल्लाह ने बता दी। और बल्कि एक आयत है उसमें अल्लाह ये कह रहा है कि जो हमने तुम पे हराम करनी थी हमने तुमको तफसील से समझा दिया है। बच्चों को पैदा होने के बाद मार देना हराम है ना? तो जब ये जो चीज हराम करनी थी वो हराम कर दी, जिसको हराम नहीं किया, फैमिली प्लानिंग को हराम नहीं किया। तो इसमें जैसे जो है सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। कुछ लोगों ने कुछ आयतों को फैमिली प्लानिंग के फेवर में इंटरप्रेट कर दिया, कुछ ने खिलाफ कर दिया। उन सारी आयतों को मैंने फॉर एंड अगेंस्ट सब लिखी हुई है, लेकिन मेरी राय में एक क्लिंचिंग वर्स, वन वर्स ऑफ द कुरान विच इज क्लिंचिंग, वो क्या कहता है? ये इसमें लिखा है, स्लाइड आ गया, हाँ, बॉटम पे, ये बॉटम पे था, देखिए, let those who do not have the means for marriage keep themselves chaste until Allah give them means out of His grace. जिनके पास साधन नहीं है वो शादी न करें, लेकिन जिनके पास साधन है वो शादी जरूर करें, क्योंकि शादी करने से तुम दूसरी औरतों की तरफ ललचाई नजरों से देखने से बच जाओगे। चेस्टिटी रहेगी, चेस्टिटी रहेगी। उसके लिए जब तक तुम्हें अल्लाह मीन नहीं देता जब तक तुम शादी न करो। इससे बड़ा प्रोग्रेसिव थॉट कहाँ हो सकता है? यही भारत सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी में है। ये शादी जब करें, जब आप इतलात हो गए 21 साल जो मर्दों के लिए और 18 साल लड़कियों की जो लिमिट है, उसके पीछे यही तो लॉजिक है कि जब आप इस लायक हो जाओ कि फैमिली को रेज कर सको। तो ये इसके बाद ये कुरान शरीफ के बाद 2 हदीसें मैंने पेश की। हदीसें बहुत हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ ये तीनों मिलके क्लिंचिंग बात पैदा करते हैं।
कुरान शरीफ में कोई चीज अगर समझ में नहीं आती थी तो लोग जाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए कि जी हमें ये बात समझ में नहीं आई। तो एक गरीब आदमी प्रॉफिट के पास चला गया, प्रॉफिट के पास जाके वो कहता है कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जब तक मैं इस काबिल ना हो जाऊं कि मेरे पास साधन हो तो मैं शादी न करूं, लेकिन मेरी तो सेक्सुअल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, मैं क्या करूं। तो पहले हुजूर ने ये फरमाया, वही चीज आयत रिपीट करके कहा कि जब तक तुम्हारे पास वो साधन नहीं हो जाए, जब तक तुम रोजा रखा करो। रोजा सेक्सुअल डिजायर को सप्रेस करता है, यानी तरीका भी समझा दिया मैरिज को डिले करने का, सेक्सुअल नीड्स को सप्रेस करने का, कि रोजा रखो, रोजे से सप्रेस होता है। और तीसरी चीज तो बिल्कुल ही इसको आर्गुमेंट को खत्म कर देनी चाहिए। एक शख्स हुजूर के पास पहुंचा, हदीस जो लोग नहीं जानते, हदीस इज व्हाट प्रॉफिट यूज्ड टू से और व्हाट ही यूज्ड टू डू एज रिपोर्टेड। नाउ somebody went to the prophet and he said, I have many children and I don't want any more and I want to practice the only method उस जमाने में जो आना था, अज़ल उसको कहते थे, यानी विड्रॉल मेथड, कोइटस इंटररप्टस का मीनिंग विड्रॉल मेथड, कि मैं वो करना चाहता हूँ। लेकिन एक जू मुझको कह रहा था कि वो इट इज एन इन्फेंटिसाइड, वो एक बच्चे को मारने के बराबर है, डोंट डू दैट। तो प्रॉफिट ने कहा कि जू ने गलत बोला, जू ने गलत बोला, यानी तुम विड्रॉल मेथड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, गो अहेड एंड डू इट। इससे ज्यादा स्पेसिफिक, और ये एक एक नहीं दो ऑथेंटिकेट हुई हदीस है कि इसमें, अब इसमें प्रोफेसर अब्दुल रहीम उमरान अल अज़हर यूनिवर्सिटी के इस्लामिक के स्टडीज के हेड, उन्होंने कहा कि साहब हम तो हैरान हैं कि 1400 साल पहले जब पूरी दुनिया में पॉपुलेशन का प्रेशर नहीं था, उस वक्त इस्लाम ने फैमिली को रिस्ट्रिक्ट करने का, स्पेसिंग का, 2 साल के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी, उसके पीछे लॉजिक के पीछे ताकि स्पेसिंग हो, छोटे बच्चे की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो बड़ा बच्चा दूध पी के ना खत्म कर दे। तो इस किस्म की तो भरी पड़ी है आयतें और हदीसें। ना इसमें जो मैं ये 5 मैंने मिथ आपको एक्सप्लेन कर दिए। मेरा इसमें कंक्लूजन ये कि एक्चुअली ये हिंदू मुस्लिम इशू है ही नहीं, इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाना बड़ा गलत है। नॉट ए हिंदू मुस्लिम इशू एट ऑल। एक्चुअली your population behavior, your fertility behavior or your family planning is dependent on several factors and not religion. Religion may be just nominally, but there are 3 main factors जिस पे फैमिली प्लानिंग डिपेंडेंट है। सबसे पहला है लिटरेसी, particularly of girls. The more you study, the lesser the number of children. एक अगले ग्राफ में ही आएगा। तो दूसरी चीज के इसमें लिटरेसी, इनकम और सर्विस डिलीवरी, के भाई डॉक्टर, नर्स, कंट्रासेप्टिव अवेलेबल होंगे जब तो आप फैमिली प्लानिंग यूज करेंगे। इन 3 पर ये डिपेंडेंट है। और ये इन चीजों की अवेलेबिलिटी पूरे इंडिया में बड़ी डिफरेंट है, वेरिएशन है। केरला में बहुत हाईएस्ट लिटरेसी है, वहां पर सबसे अच्छी फैमिली प्लानिंग है। तमिलनाडु में अच्छी लिटरेसी है, कर्नाटक में है, आंध्रा में है, इस वजह से वहां सबसे अच्छी फैमिली प्लानिंग है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज कि 25 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे मुसलमानों का बर्थ रेट कम है बिहार के हिंदुओं के मुकाबले में। अगर इस्लाम फैक्टर होता तो साउथ इंडिया के मुसलमान, तो मैं समझता हूँ हम नॉर्थ इंडियन मुसलमानों के मुकाबले में बहुत अच्छे मुसलमान हैं। हम लोग तो नालायक हैं नॉर्थ इंडिया में, आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन आप फैमिली प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के खिलाफ नहीं है। 25 स्टेट्स में मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग बिहार के हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा है। तो बिहार क्यों पिछड़ा रह गया? क्योंकि बिहार का मुस्लिम भी पिछड़ा है और हिंदू भी पिछड़ा है। वहां हिंदुओं की लिटरेसी भी कम है, उनकी इनकम भी कम है, उनके डेवलपमेंट इंडिकेटर सारे पूरे हैं। वो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट की वजह से अभी तक जो टारगेट था, जो 2010 में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इन 4 स्टेट की वजह से हुआ। इस महीने क्या करना चाहिए? ये नहीं कि मुसलमान के पीछे डंडा लेके फैमिली प्लानिंग करो, फैमिली प्लानिंग करो, बल्कि मुसलमान से कहें बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ,
कभी सुना है आपने इन लोगों को मुंह से कि बच्चों को पढ़ाओ? लिटरेसी की बात नहीं करते। जहां थोड़ी बहुत लिटरेसी हो रही है मदरसे, उसको बुरा नाम देके। मदरसा क्या चीज है? अरबी और उर्दू का वर्ड है पाठशाला। मैं तो कहता हूँ दर्स, जहाँ पे लर्निंग सिखाया जाता है। मैं कहता हूँ आज से आप अपने मदरसों का नाम पाठशाला रख दीजिए। क्यों नहीं? इसे पाठशाला, वहाँ एजुकेशन वहां से सबसे पहले, क्योंकि स्कूल होते थे दूर दूर 10-10 किलोमीटर दूर। मोहल्ले में एक मस्जिद होती थी, वहां के इमाम साहब बच्चों को ABCD और अलिफ बेटे ऐसे सिखा दिया करते थे। तो बेसिक लिटरेसी ज्यादातर मुसलमानों को मदरसे से शुरू हुई थी। तो इसलिए वो तालीम की बात नहीं करते। और जो सबसे बड़ा कॉज है उसका। दूसरी एक और चीज आप देखिएगा, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम इशू ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, देयर इज नो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये सुन लीजिए स्टैटिस्टिक देखिए, मुसलमानों के तमिलनाडु में मुसलमानों का TFR है 1.74, यानी रिप्लेसमेंट रेट से भी कम मुसलमान तमिलनाडु। बिहार में उनका 4.11 और ये बीच में 1.7 से 4.1 कुछ इस तरह वो चल रहा है। तो किसको आप मुस्लिम रेट मानेंगे? हिंदुओं को देखिए 1.42 इन केरला एंड 3.29 इन बिहार। अब इनमें से हिंदू रेट 3.29 है बिहार वाला, या 1.42 ऑफ तमिलनाडु। किसको आप मानेंगे ऑल इंडिया रेट? कोई ऑल इंडिया रेट ही नहीं है, हर जगह का रेट अलग अलग है, वेरिएशन अलग अलग है। तो ये जो वेरिएशन इतनी है कि साउथ में इतना क्यों है? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स साउथ के बहुत अच्छे हैं, लिटरेसी बहुत अच्छी है, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, डेवलपमेंट यहाँ ज्यादा हुई, हेल्थ प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे चलते हैं। अब ये देखिए लिटरेसी, मैंने बताया ना कि ये सब इस ग्राफ में हम देखेंगे जो सबसे टॉपर है 3 बच्चों वाला, जिनके जो इलिटरेट है उनके 3 बच्चे होते हैं। जिसने 5वीं क्लास पढ़ ली उसके बच्चे घट के 2.4 आ गए। जिसने 5 से 7 साल कंप्लीट कर लिए और कम हो गए। आखिर में जिसने 12वीं क्लास कर ली उसके बच्चे घट के 1.7 रह गए। अक्रॉस कम्युनिटीज, ऑल कम्युनिटीज, सबका ये ग्राफ है, कोई पक्षपात इसमें नहीं है कि लिटरेसी बढ़ाइए बच्चे घट जाएंगे। ये देखें। दूसरा है कि एजुकेशन का एक और फायदा, एजुकेशन से एज ऑफ मैरिज डिले हो जाती है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शादी डिले हो जाती है। इसमें देखें पहला ग्राफ जो बॉटम पे है, जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, वो 17 साल के एवरेज में शादी हो रही है उनकी। फिर बढ़ते बढ़ते आखिरी ग्राफ देखेंगे जो 22.7, जिन्होंने 12वीं क्लास कर ली उनकी शादी 22.5 साल में हो रही है। यानी 5.5 साल ही अगर ये पहले इन्होंने शादी कर ली होती तो 5.5 साल में तो 5 बच्चे हो चुके होते। तो मैरिज को डिले होने से फर्टिलिटी कम होती है और एजुकेशन बढ़ने से मैरिज एज डिले होती है। तो कितना इन सारे फैक्टर्स का ये है। अब अगर ये देखिए जैसे मैरिज डिले होती है बच्चे कम होते हैं। अब पहली वाले जो टॉप पे है हिंदू मुस्लिम, ये रूरल एंड अर्बन है, ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पे नहीं है, रूरल एंड अर्बन। ऊपर वाला रूरल है। जी 18 साल से पहले जिसकी शादी हो गई उसके 5.5 बच्चे 5.41, और जो 24 के बाद हुई वो घट के 4.12। इसी तरह वो अर्बन में आप देखिए वो तो वहां तो बहुत ही ज्यादा कि 18 साल से नीचे शादी हुई तो 4.6 चिल्ड्रन, 24 के बाद हुई तो 2.5, ऑलमोस्ट आधे रह जाते हैं। तो लिटरेसी बढ़ाइए, फैमिली प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर इनकम, जैसे जैसे जो सबसे पुअर है उनके 3 बच्चे अगर होते हैं तो रिचेस्ट के 1.5 बच्चे होता है, 1.6 होता है। ये सारा आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे घट रहे हैं। इस वेल्थ बढ़ाने की तो बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं इनका इकोनॉमिक बॉयकॉट कर दो, इनसे सब्जी ना खरीदो। अब आप उससे सब्जी नहीं खरीदेंगे तो घर जाके बच्चे पैदा करेगा, फिर आप शिकायत करोगे। तो ये सोचना चाहिए कि उसकी इनकम बढ़ाने की बात करो, बिकॉज दैट इज द डिटरमिनिंग फैक्टर। फिर ये देखिए वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स, पहले वाले जो ऊंचे ग्राफ है रूरल में वर्कर्स एंड नॉन वर्कर, हर जगह आप देखेंगे कि नॉन वर्कर के बच्चे ज्यादा
और जो जिनको काम मिल गया, काम करने लगे, उनके बच्चे कम होते हैं, तो उनको वर्क दीजिए, वर्क अपॉर्चुनिटी दीजिए। बात ही नहीं करते। जॉब प्रॉमिस की जाती है कि इतने करोड़ देंगे, वो दी तो जाती नहीं, बात ही होती है, जो जुमला ही रह जाता है। सॉरी, बस 2-3 मिनट। नाउ इसमें जो अफसोस की बात है कि ये जो 3 डिटरमिनिंग फैक्टर्स हैं, लिटरेसी, इनकम एंड सर्विस डिलीवरी, इन तीनों में मुसलमान सबसे पिछड़े हैं। तो बस इसलिए हमें मुसलमानों की इन 3 चीजों पर हमें ध्यान। सर्विस डिलीवरी भी नहीं करते। डॉक्टर नर्स जानना चाहता कि जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसको हेटफुली कहते हैं मिनी पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान, इधर नहीं जाने को देते। अरे भाई, उस मिनी पाकिस्तान में अगर आप जाके सर्विस डिलीवरी नहीं दोगे, कॉन्डोम का स्टॉल नहीं लगाओगे, बाकी की सर्विसेज नहीं दोगे, तो वो फैमिली प्लानिंग कैसे होगी? उसकी बात नहीं क्योंकि सर्विस डिलीवरी में सबसे कम एरिया में तो ये भारत सरकार की स्टेटिस्टिक्स 100%। नाउ वे डू मुस्लिम स्टैंड इन ऑल दीस इंडिकेटर। आप देखेंगे सेकंड जो सेट ऑफ ग्राफ है, जो सबसे बॉटम है, वो मुसलमान है। और एक इंटरेस्टिंग चीज अब मैं और इंट्रोड्यूस कर दूं कि सबसे कम अगर मुसलमान है तो नंबर 2 पे हिंदू है, वो उसके साथ साथ, यानी हिंदू मुस्लिम एक्चुअली शोल्डर टू शोल्डर है। अगर मुसलमान सबसे कम पड़े हुए तो हिंदू उनके मुकाबले में बस नंबर 2 पे। अगर मुसलमान सबसे पुअर है तो हिंदू उनके मुकाबले में सेकंड पुअरेस्ट है, विच इज व्हाई उनके दोनों के इंडिकेटर बस वन आफ्टर द अदर है। तो ये चीज समझ जाएगी, एक्चुअली दे आर ऑन द सेम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दे आर बिल्कुल भाई भाई हैं। ये इसी तरह वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये सेकंड सेट ऑफ ग्राफ, मुसलमान सबसे कम मेन विमेन में, और उसके बाद हिंदू, उसके बाद ऑफ कोर्स क्रिश्चियन सब बेहतर है। ये बात ऑलरेडी मैंने बता दी ना। अब 1-2 बातें बस फाइनल रह गई कि मैंने एक चैप्टर इसमें लिखा है कि मुस्लिम कंट्रीज में 10 मुस्लिम कंट्रीज देखे तो वहां पर फैमिली प्लानिंग का क्या स्टेटस है। ईरान, द बेस्ट फैमिली प्लानिंग इन द वर्ल्ड, whereas Islam is the most conservative Islamic country. If they thought Islam was against family planning, will they be doing it as a national policy? Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Turkey, Egypt, all have done extremely well in family planning, and they are all Islamic countries, good Islamic countries. So Islam is nowhere near it, and they realize it. यहाँ तो चलिए हमारे पॉलिटिक्स है, कोई पार्टी इसको पॉलिटिकल इशू बनाती है, वहां तो कोई पॉलिटिकल इशू है नहीं कि ईरान में और मलेशिया और इंडोनेशिया में। वहां तो इमाम लोग मस्जिदों से फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, जुमे के खुतबे में फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। तो ये उसी का टेबल आप नीचे से जाएंगे, ईरान में 1.6 का TFR, उसके ऊपर जाइए मलेशिया, फिर टर्की, फिर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया फॉल 2.48। So, लेकिन पाकिस्तान इन बॉटम 3.37, वहां पे कंजर्वेटिज्म है। उसी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश एक्सीडिंगली वेल, और बांग्लादेश का कितना है 2.06, इंडिया से कम। सारे मुसलमान है वहां, लेकिन इंडिया से कम, क्योंकि वो उन्होंने इसको इस्लाम इसका बाधा है नहीं माना। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें। फिर मैंने इसमें एक चैप्टर दिया कि भाई जब फैमिली प्लानिंग की बात होती है सिर्फ इस्लाम की बात ही क्योंकि इस्लाम, बाकी सारे मजहब का भी तो कोई स्टैंड होता होगा इस पे, वो मैंने सब कह दिया। जैसे क्रिश्चियनिटी तो कॉन्डोम भी अलाउ नहीं करती, तो स्पेसिंग भी गई, तो स्टेरिलाइजेशन को तो आप भूल ही जाइए, अबॉर्शन वगैरह नहीं है। तो ये सारे कंडीशन मैंने एक चार्ट इसमें बना दिया, लेकिन पूरा एक चैप्टर है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो है, मैंने इसमें कोट किया है कि मेरे कोई अपनी दिमाग की कोई नहीं है, बड़े बड़े नेताओं के नाम के साथ कि फला नेता ने फला तारीख को ये कहा, क्योंकि मेरे जो पब्लिशर है हार्वर्ड कॉलेज, वो इस मामले बड़ा सकता है, उनकी लीगल डिपार्टमेंट ने इस किताब को पूरी तरह गौर से पढ़ के कि जो बात आप इसमें कह रहा हो उसकी सोर्स चाहिए, क्या आपने ये कहां से लिया, तो हमने पूरी सोर्स डाली, 450 के करीब सोर्सेज इसमें मेंशन है, कहां से ये इंफॉर्मेशन आई, ये मेरे दिमाग की इख्तिरा नहीं थी, इट इज ऑल कोटेड फ्रॉम सोर्सेज। सो हमने ये डाली। तो फिर फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रोफेसर दिनेश सिंह का जो मैथमेटिकल मॉडल, कि कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुसलमान हिंदुओं से आगे बढ़ जाए। तो इसलिए हिंदुओं को ये रीअश्योरेंस पहुंचाना चाहिए कि डोंट वरी, इट इज नॉट हैपनिंग,
You are absolutely safe, and actually your numbers are increasing. Now, national population policy 2000 I think is a great success story. तो उसको हम अचीव करने के पहुंच गए, लेकिन ये सब के बावजूद हमें इतनी थोड़ी डिले क्यों गई? मैं कहता हूँ हमारी पॉपुलेशन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। हम भारत सरकार को गाली देते हैं, ये गलत है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट अ फैमिली प्लानिंग पॉलिसी 1952 में। उसी के नतीजे में हम पॉपुलेशन के डिनायल मोड में नहीं थे, वी हैव बीन डिस्कसिंग इट, टॉकिंग अबाउट इट, और हम अचीवमेंट के करीब ही हम पहुंच गए ना। हमारा फिर अगर कमी रह गई तो क्यों रह गई, वो मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये मेरे इसके बाद एक स्लाइड और है। तो इसमें एक तो जितनी कमी है कि मैंने देखा कि जितनी भी प्लान 5 ईयर प्लान की डॉक्यूमेंट थी और दूसरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट थी, उन्होंने हर में ये लिखा कि मुसलमानों का बजट सबसे हाई है, लेकिन किसी ने सोल्यूशन नहीं बताया। भाई साथ साथ अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, सोल्यूशन भी तो सजेस्ट करो। सोल्यूशन सजेस्ट करते में डरते थे कि भाई पॉलिटिकल इशू ना बन जाए, व्हिच इज रॉन्ग। पॉलिटिशियन ने इस इशू को रडार से हटा दिया, खास तौर से इमरजेंसी के बाद 1975 to 73 आपको मालूम है फैमिली प्लानिंग कितना फोर्सफुली इन्फोर्स की गई थी। उसके बाद से नेता लोग डर गए और पॉपुलेशन की बात करनी बंद कर दी। भारत सरकार ने ये कमेटी बनाई थी मेरी अध्यक्षता में, इसी सरकार के जमाने में, बाय द वे। उसमें हमने ये देखना था कि नेताओं का एटीट्यूड फैमिली प्लानिंग के लिए है क्या। उसमें ये पाया, हमने 4 लोकसभा के टर्म्स को एनालाइज किया, 13वीं 14वीं 15वीं और 16वीं लोकसभा। Only and we analyze how many parliament questions were asked. Sir, do you know 0.15% questions were on family planning, because the netas got scared over talking of family planning, which is wrong. So we would like that it should be on political agenda. They should discuss it in the constituency and motivate people. फिर ये दूसरी चीज मैंने इसमें कही कि मुसलमानों में हायर बर्थ था, उसको टैकल करने के लिए कुछ किया नहीं गया। अब मेरे पास एक कोई फैमिली प्लानिंग का वर्कर आए और ये कहे कि कुरैशी तुम्हारे बच्चे 8 हो गए, 6 हो गए, मेरे वैसे 2 ही हैं बाय द वे, लेकिन 8 बच्चे हो गए, आप फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं करते? तो मैं अगर जवाब दूं मेरा मजहब इसके खिलाफ है, तो उस आदमी को पता ही नहीं कि मजहब क्या क्या होता है, क्या कहता है, वो मुंह लटका के चला जाएगा, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। तो हमें अपने हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको ये किताब हाथ में देनी चाहिए, इस्लाम क्या कहता है बताना चाहिए, ताकि वो जवाब दे कि भाई तुम्हारा ये इंप्रेशन गलत है, तुम्हारा मजहब इसके खिलाफ नहीं है, तो तुम्हें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आदमी को 10 में से 5 को तो समझ में आ जाएगी बात। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, ये लास्ट है कि एक तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इज अ ग्रेट आइडिया, family planning is a great idea, and Muslims particularly should adopt it proactively because they are the most backward. वो उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। फिर जिन लोगों में रेजिस्टेंस है कि वो मजहब के खिलाफ है, उनको हमें समझाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक रिसोर्स बुक बनानी चाहिए। मैंने इसमें वॉलंटियर के जो लिखा है कि मैं एक बना के फ्री सरकार को दे सकता हूं कि वो अपने वर्कर को थमाए। फिर हमें चाहिए कि हम अपने उलमा को इंडोनेशिया भेजें, ईरान भेजें कि उन्होंने इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग कैसे करी, वहां से जब आएंगे सीख के आएंगे, इंस्पायर होके, तो यहाँ पे लोगों को समझाएंगे। हमें चाहिए कि वहां के स्कॉलर्स को, ईरान के, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश के, उनको इंडिया बुला के उनसे लेक्चर लें कि भाई तुम इमाम होते हुए खुतबा पढ़ते हो, फैमिली प्लानिंग के उसमें बातें करते हो, तो ये कैसा चल रहा है, तो हमें एक्सपीरियंस होगा। तो फाइनली ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, इसको हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। 6 महीने हो गए इसमें, अभी तक तो कोई किसी ने कोई क्रिटिसिज्म या अटैक, सारे हिंदुस्तान के अखबारों ने इसको रिव्यू किया और फेवरेबल टोटली, कितने टीवी चैनल ने किया, लेकिन किसी ने इस पर अटैक नहीं, क्योंकि अटैक करेंगे कहां से? ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा बेस्ड फैक्ट्स, राइट? तो हमें ये नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और आप लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया, आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज द फर्स्ट फिजिकल लॉन्च इन द कंट्री।
मेरे एक दोस्त कलकत्ता से आए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कैसे हो रहा है, क्योंकि ये कलकत्ता में आगे करना चाहते हैं। इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेशन करा डाली। मेरे पास आसाम से और हैदराबाद से आया कि हम लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराएंगे। मैंने कहा आप सब लोग कराओ, कॉपीराइट फ्री जितना जरूरी, क्योंकि ये नॉलेज है वो करे। क्योंकि इसका एक चैप्टर तो है ही है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग कैसे कराई जाए। पूरी मैंने स्ट्रेटेजी, हमें कम्युनिकेशन का PhD, वो मैंने पूरी अपने जो एक्सपीरियंस एंड नॉलेज है उसमें पूरी इसमें डाली है कि मुसलमानों में फैमिली प्लानिंग करानी चाहिए और कैसे कराई जाए, प्यार से समझा के, न के गाली देके, है ना। तो ये इसका थीम है। शायद मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन ये इतनी जरूरत है, यही तो फैक्ट्स हैं जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।